ਹੈਲਪਲੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਚੁਨਾਗਰਾ ਰੋਡ ਪਾਤੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਏ ਸੰਧੂ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਏ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਏ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਾਤੜਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਔਖਾ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 923 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 93 ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗੀ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਐਮਓਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। 24 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੜੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। मैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो डॉक्टर टी एस संधू ने अपनी जीवन जान लगाकर ये हॉस्पिटल बनाया था। सेवा अपने मन में थी। 83 में उन्होंने यहाँ पर अपना पातड़ा में अपना सफर जो जिंदगी का शुरू किया और 2009 में वो इस फानी संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी जो पाए हुए पूर्णे थे उन पर चलते हुए मैडम ने और स्टाफ ने, जो स्टाफ भी इतना बढ़िया, मतलब आज हम मतलब बच्चों की तरह वो उनको डील करते थे। डॉक्टर संधू का हमेशा यही था कि वेलनेस के ऊपर काम करना है और वही इसमें आगे बढ़ रही हैं। मैडम से बात कर रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका। आप 82 में यहाँ पर आए, कैसा आपको क्या सफ़र था, कैसे कैसे आप लोगों ने मेहनत की और कैसे कैसे इस एरिया में पातड़ा के लोग तब पटियाला जाते थे दवाई लेने के लिए, चंडीगढ़ जाते थे, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी। हाँ जी, 82 में वी वर वेरी यंग और छोटी बेटी मेरी 8 महीने की थी और सच में कभी हम छोटी जगह कभी ठहरे नहीं थे। तो एक बार तो लगता था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस जगह ने इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दी कि एक बार आके बैठे। 44 इयर्स होने वाले आई थिंक, तो बस यहीं के हो गए। ये सब आई थिंक निश्चित होता है किसको कहाँ रहना है, कहाँ दाना पानी लिखा है, बट ये जगह जब हम आए थे तो क्लिनिक्स थे नहीं यहाँ पे। फर्स्ट लेबॉर्ट्री हमने स्टार्ट की यहाँ पे और एक दो और हॉस्पिटल थे एंड आई थिंक 65 विलेजेस को केटर करते रहे हैं हम। तो रात दिन चलता था। अब हमारी तो पहचान ये है, जो भी आता है, मेरा बेटा 35 इयर्स का आपके पास जन्म लिया, मेरी बेटी 38 इयर्स, 28 इयर्स, 25 डेली आते हैं। मैं बीच में 10-12 साल नहीं रही थी, फिर भी बच्चों ने
डॉक्टर साहब का शुरू किया हुआ क्लिनिक वैसे ही चलाया, उतना ही लगन से, मेहनत से और एथिकली। अपने मुंह से शायद कहना उतना अच्छा नहीं लगता, बट फैक्ट इज कि वी कैन ओपनली से कि हमने कभी किसी से वो क्या जो कमीशन और ये देन लेन ना दिया ना किया, वेदर एनीवेयर, चाहे रेफर करना पड़ता है पेशेंट, इट नोबडी कैन से कि एक बार भी किसी से कुछ क्या जो आजकल है, या दवाइयाँ बेचने के लिए किया हो कि उसका दवाई ये निकालो तो ये 100% इसका मैं मतलब कह सकती हूँ कि जो शुरू किया था वैसा ही आज है, सिंपल एंड बस इलाज करते हैं, पेशेंट आते हैं, उसके सिवा और आई थिंक कुछ भी यही चल रहा है। टीएस संधू ने जैसे वेलनेस के ऊपर काम किया, पेशेंट जो शुगर के थे अब तक भी चल रहे हैं, कई तो बहुत लंबा लंबा समय हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग एक गाइडर हैं, हम लोगों को हमें ये रहता है कि कम से कम टेस्ट हो पेशेंट के और ज्यादा से ज्यादा उसको सेवाएं मिले, क्योंकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उससे हम लोग याद कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा आजकल दिखने को लगता है कि जल्दी से सब टेस्ट, फर्दर टेस्ट, हायर टेस्ट, लेकिन जो क्लिनिकल डायग्नोज होता है, पेशेंट के साथ हिस्ट्री लेना, उसका निकालना, उसका और साथ में उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कि ये कहाँ तक इसको पॉसिबल है इलाज करवाना, कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम उसका खर्चा अननेसेसरी ना हो वैसा ही होना चाहिए। उसको गाइडेंस अबाउट द फूड, अबाउट लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक, तो ऐसे मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है। सोने जाते हैं तो मन पे कोई बोझ नहीं उठता, इतना मतलब, और जगह ने इतना प्यार दिया। मैं सबका पात्रा का बहुत ही शुक्रगुजार है आपकी, दे हैव गिवन अस सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू। आप गुरु घर के सामने बैठे हैं, यहाँ पर लोग नतमस्तक होने जाते हैं, सेकंड से नतमस्तक होने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वेल विशिंग है, ये वहाँ से जो गुरबानी चलती है उसकी आवाज़ कानों में पड़ती है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। हाँ बिल्कुल सही है जी। जब हम आए थे तो गुरुद्वारा हमारे क्लिनिक के सामने है, तो सुबह सबसे पहले आवाज़ आती थी कि सुबह हो गई है, उठो, उठ के नाम लो भगवान का और काम शुरू करो। तो आई थिंक वो ही करवाता है, इंसान कुछ नहीं कर पाता, पर इतनी उसकी कृपा रही है इस जगह की, और इस जगह का तो मैं सोचती हूँ कि इतना प्रताप है, हम नहीं कुछ कर सकते, वो करवाता जाता है। आते हैं पेशेंट मिलने, तो कई बार उनके आँख में भी आंसू होता है, कई बार वो कहते हैं कि हम आपको हक करें अच्छे से, हम आपको गले मिल लें, गरीब हैं अमीर हैं, तो वो इतना अच्छा लगता है मतलब। और सबको ये लगता है कि ये हमारा घर का हॉस्पिटल है। उनको जो आते हैं कहते हैं कि ये नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल आए, ये अपना ही है, अपना। सो हमें लगता है अपनापन से सब कर रहे हैं, पुराने स्टाफ मेंबर हैं, और इन्होंने जी जान से सबने हॉस्पिटल को ही 30-40 साल दे दिए हैं। खतरा में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े, क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई की पहली पसंद है, जब भी वो बाहर से आते हैं उनको खुशी होती है हमारा वही हॉस्पिटल, और वो गाइड करते हैं लोगों को, रेफर करते हैं कि नहीं आप उधर चले जाओ, वहाँ जाकर आपको जो बीमारी है वही रहेगी, वो बीमारी घटे तो घटना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन बढ़ेगी। हाँ जी, बात सही है। और जो बाहर बच्चे गए हैं हमारे यहाँ पैदा हुए, लड़की लड़कियाँ, वो वहाँ से बात करते हैं वीडियो से, वहाँ से यहाँ से उनको दवाई भेजते हैं। हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से सब इलाज करना, फिर भी उनको जो प्रिलिमिनरी हम यहाँ से हेल्प कर सकते हैं, या उन्होंने रिपोर्ट्स शेयर करनी होती है, सलाह लेनी होती है, क्योंकि वहाँ इतना जल्दी फैसिलिटी मिलती नहीं है, तो वो बात करते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो बात हो गई, एंड दे हैव गाइडेड अस। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, एंड इन रिटर्न पीपल आर गिविंग अस सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। भगवान की बहुत ही कृपा है। बच्चियों के लिए पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये हॉस्पिटल वरदान है। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी चेन है, जो भी पेशेंट आता है उसको वेलनेस के साथ वो इन बीमारियों से निजात पा जाता है। इनफर्टिलिटी के लिए ये हॉस्पिटल वरदान है, क्योंकि आप लोगों ने गाइड करना होता है, आप लोग उसको प्रेशर रिलीज कराते हैं। अब जब वो ई जोन में चला जाता है, जब तो हमारी निगाहें जे पर नहीं है, हमारी निगाहें सेवा पर है, तो वही कारण है कि यहाँ जो आता है वो ठीक हो जाए।
हाँ जी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी ये बहुत ही राइज पे है। स्ट्रेस, फोन यूज, गलत खाना, ये सब काफी कॉमन है। मेरे पास तो जो आता है, पहले तो मैं बच्चे से फोन पकड़ती हूँ कि फोन मत दो इनको। खाने का जो पैकेट पकड़े होते हैं वो भी हाथ से पकड़ के कि ये नहीं खाना है आपको। मतलब सारा दिन यही निकलता है। गाइडेंस में तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल्स में भी कई एक दो में उन्होंने बुलाया है गर्ल्स को लेक्चर वगैरह देने के लिए। स्पार्कलिंग स्कूल में हम गए थे, अभी गुरु तेग बहादुर में जाना है छुट्टियों के बाद। तो बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को, लड़कों, बच्चों को कि शायद कुछ परसेंट, 1% भी अगर बात उनको अच्छी लगती है और वो प्रैक्टिस करते हो तो चेंज सोसाइटी में ऐसे ही आती है। 50 साल पुराना 44 ईयर्स पुराना हॉस्पिटल, सेकंड जनरेशन भी आ गई। पहले तो माओ के बच्चे हुए, अब उनकी बेटियों के, बेटों के। क्या कहना चाहेंगे कि बड़ा मतलब खुशी होती है जब वो आकर पैरों में पड़ते हैं, अरे आपने आंटी हमारा भी इसी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मैं तो खाली को शक्ल से पहचानती हूँ। हाँ, आप तो एक एक घर के अगर 5 बहुएं हैं, पांचों की डिलीवरीज 2-2, 3-3, सो एक एक घर से कई बार 10 डिलीवरीज, 8 डिलीवरीज, तो नेक्स्ट जनरेशन के भी आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन भी अभी आई है, या लड़कियां या बहुएं। अच्छा लगता है। कोई आके कहती है मेरा हस्बैंड यहाँ पैदा हुआ था, कोई लड़की आके लड़का कहता है मैं मेरी वाइफ का बर्थ यहाँ का है। अच्छा लगता है, वो हमारी पहचान सी हो गई है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने आए। थैंक यू सो मच।